नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोकने का सिलसिला लगातार दूसरे हफ्ते भी जारी रहा। आज दूसरा हफ्ता उसकी शुरुआत हो चुकी है और लोकसभा में आप जानते हैं कि पिछला हफ्ता कैसा बीता है। आपको याद होगा कि पिछले सोमवार को राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन चीन का मुद्दा आते ही, नरवणे साहब की किताब का मुद्दा आते ही सरकार ऐसी डरी और कि उन्हें बोलने से रोक दिया गया और उसके बाद पूरे सप्ताह राहुल गांधी सदन में नहीं बोल पाए। आज फिर बजट सत्र में के जो अब आज से जो सप्ताह की शुरुआत हुई है, उस फिर बजट पर चर्चा के लिए आज जब शुरुआत हुई, कहा गया कि अब हम बजट पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को किसी अन्य विषय पर आसन से बोलने की अनुमति नहीं मिली। राहुल गांधी ने आज लोकसभा में आसंदी से क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। उस वक्त संध्या रे थी आसंदी पर मौजूद और इन्होंने क्या कहा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने member of the house went, and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word, so I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? तो आप सुन रहे थे, यहां पर राहुल गांधी साफ साफ पूछ रहे हैं कि क्या हम अलाउड हैं या नहीं है। आप बता दीजिए, हमको यहां पर बोलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। सरकार का डर अब खुलकर जाहिर हो रहा है। राहुल गांधी ने आज इस डर की वजह भी बताई है। उनका कहना है कि अमेरिका से डील पर और बजट पर सवाल न उठे, इसलिए मोदी सदन नहीं आ रहे हैं, यानी संसद में नहीं आ रहे हैं। और साथ ही राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि मोदी सदन में आने से डरे हुए हैं, क्योंकि वो पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब से उठते सवालों से भी डरे हुए हैं। वहीं सदन में मोदी पर हमले की आशंका को बेतुका बताते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ सदन में किसी विपक्षी सदस्य द्वारा हमला करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और अगर किसी ने कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की हो या करने को कहा है, तो भी प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज करके उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आइए जरा सुन लीजिए, यहां पर इस मामले पे भी राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, उनकी जुबानी सुनिए। Story started a few days ago when the issue of that book came, the Narawane book, and the government didn't want me to discuss that at all, and so they stalled the house. They didn't let me speak. That happened 3 or 4 times. In that they said that I cannot. First they said that I cannot quote a book. Then I said I'm not quoting a book, I'm quoting a magazine. Then they said you cannot quote a magazine. Then I said I'll speak about it. Then they didn't want me to speak about it. They also said, Defense Minister said falsely that the book has not been published. In fact, the book has been published, and we've got a copy of it also. So that is one big issue, not allowing the LOP and the entire opposition to speak in the President's address. Second issue is one of their members spoke quoting books, multiple books, and spoke very vile stuff, and nothing was said. So we don't like the fact that they can say whatever they want, whenever they want, and the opposition cannot. Third issue is suspension of our members. And final issue which we are very disturbed about is this idea that has been floated that members were going to threaten the Prime Minister. There's no question of that. Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House. Not because of the members, but because of what I was saying. And he's still scared because he cannot face the truth, right? There's no question of our members attacking the Prime Minister. He should have the courage to come. And I also mentioned that, look, if somebody is said that he's going to attack the Prime Minister, then please do an FIR at once. Arrest that person. Why are you not doing that, right? So that's basically what's happened. Now the agreement is that
we'll be allowed to say tomorrow, we'll be allowed to say these points, and then the discussion should happen. So we are quite keen that the discussion happens. We want the discussion to happen. But now let us see what the government says. My personal, please. My personal view is that the government is scared to have a debate. The Prime Minister didn't come into the House because he was scared of what we were going to say. He was scared of being handed Mr. Naravane's book as a first step, right? And my guess is that the government is worried about having a debate on the budget because the issue of the US deal, the way it was done, what has happened, the impact on our farmers is going to be discussed, and the government doesn't want to do that. तो पूरी बात यहां पर राहुल गांधी ने रख दी कि क्यों आखिर सरकार डर रही है, क्यों नरेंद्र मोदी डर रहे हैं, महिला सांसदों के मामले में क्या है, एफआईआर आप क्यों नहीं करते, ये सारी बातें आपने यहां विस्तार से राहुल गांधी के इस वक्तव्य में आपने सुन लिया, जो मीडिया के जरिए वो आप तक हम तक पहुंचाने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे थे संसद परिसर से। आपको बता दूं कि लोकसभा में पीएम मोदी पर हमले के खतरे की बात छेड़कर बीजेपी तो फंसी ही है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी बुरे फंस गए हैं। उन पर यानी ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात विपक्ष कर रहा है। विपक्ष एकजुट है और इस पर अंदर खाने बहुत तेजी से बात चल रही है। साथ ही आज कांग्रेस की महिला सांसदों ने एक चिट्ठी लिखकर सवाल उठाए हैं, ओम बिरला पर चिट्ठी लिखकर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी समेत 6 महिला सांसदों ने इस खत को लिखा है और क्या कुछ कहा है जरा आपके सामने रख रहा हूं। इस खत के जरिए यहां प्रियंका गांधी समेत 6 महिला सांसदों ने लिखा है कि हम ये चिट्ठी बहुत दुख और संवैधानिक जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ लिख रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा के स्पीकर और इस सम्मानित सदन के संवैधानिक संरक्षक होने के नाते आपको यानी ओम बिरला को सत्ताधारी पार्टी ने विपक्ष खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला सांसदों के खिलाफ झूठे, बेबुनियाद और मानहानिकारक आरोप लगाने के लिए मजबूर किया है। महिला सांसदों ने अपने खत में कहा है कि हमें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि हम लगातार मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ती रही हैं। खत के जरिए महिला सांसदों ने यह भी कहा कि लोकसभा से प्रधानमंत्री मोदी की अनुपस्थिति हमारे किसी खतरे के कारण नहीं थी, बल्कि यह डर का परिणाम था। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद हैं, एक ऐसा दल जो प्रेम, शांति, संवैधानिक मूल्यों और मानवीय गरिमा में विश्वास करता है। हम हिंसा और धमकी में विश्वास नहीं रखते। हम लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जिन्हें डराकर चुप नहीं कराया जा सकता। हमारा विश्वास है कि पारदर्शिता ही अध्यक्ष पद की गरिमा और इस सदन की विश्वसनीयता को पुनः स्थापित करने का एकमात्र मार्ग है। हम आपके पद और आपके व्यक्तित्व का पूरा सम्मान करते हैं, किंतु यह स्पष्ट है कि आप सत्तारूढ़ दल के निरंतर दबाव में हैं। हम आपसे एक बार फिर आग्रह करते हैं कि आप लोकसभा के निष्पक्ष संरक्षक के रूप में कार्य करें। हम इस प्रयास में आपके साथ खड़े रहेंगे और आपका समर्थन करेंगे। इतिहास उस व्यक्ति के रूप में याद रखे जो कठिन परिस्थितियों में सही के साथ खड़ा रहा और राष्ट्रहित में संवैधानिक मर्यादाओं को बनाए रखा। इतिहास आपको उस व्यक्ति के रूप में याद न रखे जिसने दबाव के आगे झुककर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया और देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को क्षति पहुंचाई। ये बात यहां लिखी है प्रियंका गांधी। वही प्रियंका गांधी समेत 6 सांसदों ने, महिला सांसदों ने इंग्लिश में ये चिट्ठी, 2 पन्ने की चिट्ठी है, उसका हिंदी रूपांतरण आप तक हम पहुंचा रहे थे, कुछ टुकड़ों को आप तक पहुंचा रहे थे हम। वही प्रियंका गांधी ने इस बारे में जो कुछ कहा है जरा सुन लीजिए यहां क्या कह रही है प्रियंका गांधी की इस बाइट को सुनिए। कि स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की, उनमें से किसी को आप देखिए सब सीरियस लेडीज हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है, क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की। तो उनकी हिम्मत नहीं हुई तो फिर उसके बाद सफाई स्पीकर दे रहे हैं उनके लिए, तो गलत बात है ना।
तो आप सुन रहे थे यहां प्रियंका गांधी साफ साफ अपनी बात रखते हुए 11 महिला सांसद बोले मुझे मिलाकर 10 और मुझे मिलाकर 11 कांग्रेस पार्टी से। तो साफ दिख रहा है कि विपक्ष तो चाहता है कि संसद सुचारू तरीके से चले और स्पीकर के पद की मर्यादा भी बनी रहे, लेकिन मोदी सरकार में सब कुछ तहस नहस हो रहा है और इन सब के पीछे सीधे सीधे मोदी जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। उनके काम के तरीकों में कहीं भी कोई किसी तरह की पारदर्शिता नहीं है और सदन से हर बात छिपाने की आदत अब विपक्ष के ऊपर जो है वो परेशानी का कारण बनता जा रहा है। यानी नरेंद्र मोदी न पारदर्शिता रख रहे हैं और न ही सदन से बात को आगे बढ़ाने की कोशिश, सदन में आकर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां तक कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का जो मंत्रिमंडल है यानी कैबिनेट है, मिनिस्टरों का कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने हैं उनको भी नहीं पता चलता कि निर्णय क्या लिए गए। कृषि मंत्री को पता नहीं कि कृषि पर क्या फैसला ले लिया गया, उद्योग मंत्री को पता नहीं कि उद्योग के बारे में क्या कह दिया गया, और विदेश मंत्री को पता नहीं कि विदेशों के साथ में डायरेक्ट डीलिंग क्या कर ली नरेंद्र मोदी ने। इसलिए यहां अखिलेश यादव ने इस बारे में जो कुछ कहा है जरा आप तक पहुंचाने की कोशिश हम करते हैं। अखिलेश यादव बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस बचाने की कोशिश हम सब विपक्ष के लोग चाहते हैं सदन चले, और उस समय चलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब अमेरिका से इतनी बड़ी डील हुई है। डील तो नहीं, ढील दी गई है। और हम आप सब ये जानते हैं कि एक परंपरा है, बजट बनाने से पहले हलवा बनाया जाता है, लेकिन बजट और डील देख के लगता है हलवा किसके लिए बना है। बीजेपी को ये भी समझाना है कि 18 बड़े हैं कि 0 बड़ा है। बीजेपी ये भी समझा रही है कि 18 और 0 बराबर हैं। इन सवालों के जवाब विपक्ष मांगेगा, सदन चले, क्योंकि बहुत दिनों के बाद 91-92 के बाद ये बड़े पैमाने पे बाज़ार खुला है। हमारे भारत का बाज़ार, अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोप, चीन तमाम देशों के बीच से घिर गई है। फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमारे संबंध क्या होंगे, वो अर्थव्यवस्था तय कर रही है। इसलिए सरकार को आगे आकर के बहुत सी बातों को न लेकर के सीधी सीधी विपक्ष के जो सवाल है उनका जवाब देना चाहिए। नहीं, जो तो ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर ही बातें छिपाई जा रही हैं, बल्कि अब पीएमओ ने कहा है कि संसद में पीएम केयर फंड, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से जुड़े सवाल भी नहीं पूछे जाएंगे। यह भी सुन लीजिए कि पीएम केयर फंड, पीएम राष्ट्रीय सुरक्षा राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष, इन तीनों से जुड़े हुए सवाल अब संसद में नहीं पूछे जा सकते। सांसद, या चाहे वो सत्ता पक्ष के सांसद हों चाहे विपक्ष के सांसद हों, वो नहीं पूछ सकते। इस बारे में एक खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, जिसे शेयर करते हुए कांग्रेस ने एक पोस्ट में लिखी है। क्या कुछ लिखा है कांग्रेस ने, जरा आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, इस पोस्ट में कांग्रेस लिख रही है कि संसद में पीएम केयर फंड, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष यानी पीएमएनआरएफ और राष्ट्रीय रक्षा कोष यानी एनडीएफ से जुड़े सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे। ये निर्देश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को दिए हैं। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय से कहा है इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि संसद में कोई भी सदस्य इन फंड्स पर सवाल न उठाए। तो सवाल है जो कांग्रेस पूछ रही है कि सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें जनहित के सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है। मोदी सरकार जनता के लाखों करोड़ रुपए का हिसाब क्यों नहीं देना चाहती। आखिर मोदी सरकार देश की जनता से क्या छिपाना चाह रही है। क्या अब देश की संसद नरेंद्र मोदी की मनमर्जी से चलेगी। यह सीधे तौर पर तानाशाही है, संसद का अपमान है और सांसदों के अधिकारों पर हमला है। यह बात यहां कांग्रेस पार्टी लिख रही है। तो आपने देख लिया दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या विपक्ष से डरे हुए नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व करने की स्थिति में हैं। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, बहुत बड़ी घटना हो जाएगी जिस दिन यह अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पेश करना बहुत आसान है यहां पे, क्योंकि विपक्ष के पास उतने सांसद हैं कि वह अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। यह तय मानिए कि आज यह गतिरोध नहीं खत्म हुआ। अभी से थोड़ी देर पहले 2 खबरें और आई हैं।
एक सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है कि ओम बिरला और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। कितना सच है कितना झूठ है, इस बारे में हमारे साथी अभी जुड़ेंगे, शकील जी वो बताएंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि नरवणे साहब पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब जो है उसको सार्वजनिक करने, उसको पब्लिक में लाने के लिए, जिसकी मंजूरी पहले से नहीं मिली है, लाने के खिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर ली है और उस पर कार्रवाई करेगी। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंजूरी के बिना किताब सार्वजनिक करने को लेकर राहुल गांधी पर केस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में हुआ दर्ज केस, ये दर्ज हुआ है केस। चलिए, केस नहीं होगा तो फिर राहुल गांधी और कैसे चर्चा में आएंगे। राहुल गांधी ने आज कहा कि अगर आपको मुझ पे कोई किसी तरह की आपत्ति है तो एफआईआर कर दीजिए। एफआईआर दिल्ली पुलिस ने, सूत्रों के हवाले से खबर यही चल रही है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दी, स्पेशल सेल ने एफआईआर कर दी है। चलिए अब गिरफ्तार कीजिए और आगे बढ़ते हैं। हम जरा इन गिरफ्तारियों से इतर चर्चा करेंगे कि क्या विश्वास प्रस्ताव आएगा और आता है तो फिर क्या होगा और संसद का यह गतिरोध कब खत्म होगा। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, खबरें इतनी आ रही हैं और मुझे लगता है कि इस न्यूज पॉइंट के दौरान और भी खबरें आएंगी, लेकिन आंखों देखी दिन भर आपसे बेहतर और कौन बताएगा। आप दिन भर वहीं थे, क्या चल रहा है और क्या सचमुच मुलाकात हुई है राहुल गांधी और ओम बिरला की? इस चिट्ठी का को कैसे देखा जाए, जिसमें महिला सांसदों ने चिट्ठी लिखी है सीधे सीधे ओम बिरला को, अपनी तरफ से जो रिक्वेस्ट, जो आग्रह, अनुग्रह सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इन सबसे इतर आखिर संसद का गतिरोध खत्म कैसे होगा? क्या ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा? शकील जी। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बिना जवाब के पास करना पड़ा। सरकार के सामने बहुत बड़ा संकट है कि कहीं ऐसा ना हो कि बजट की प्रक्रिया भी ऐसे ही पूरी करना पड़े। अगर राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया तो बजट पे चर्चा नहीं हो सकती। आज कांग्रेस ने और राहुल गांधी दोनों ने बहुत साफ कर दिया इसको। राहुल ने आज बोलना चाहा, राहुल ने बताया भी कि उनसे पहले जाके उनकी पार्टी के सांसद स्पीकर से मिले थे, स्पीकर ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाएगा, राहुल इसीलिए खड़े हुए। मगर आज लोकसभा की कार्रवाई 10 मिनट भी नहीं चली। 11 बजे से 12 बजे, 12 बजे से 2 बजे और 2 बजे से कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस वक्त जो स्थिति है वो मोदी जी के लिए बहुत गंभीर बनी हुई है। ये जो आज कांग्रेस ने कहा है कि डर रहे हैं, राहुल गांधी ने ये इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रियंका गांधी ने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया, जो पत्र लिखा है महिला सांसदों ने उसमें इसी शब्द का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री डर रहे हैं और हमसे नहीं, हमारी महिला सांसदों से नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता हमसे, तो डर रहे हैं राहुल के सवालों से, राहुल का सामना करने से। तो ये जो स्थिति है बहुत गंभीर स्थिति है। लोकसभा अध्यक्ष के प्रति जो अविश्वास प्रस्ताव है, दरअसल उसको मोशन ऑफ रिमूवल कहा जाता है। अविश्वास नहीं आता है, वो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव, वो बहुत सामान्य प्रक्रिया होती है उसकी। संविधान के 94C में उसकी व्यवस्था है। 50 लोकसभा सदस्यों के हस्ताक्षर की उसमें जरूरत होती है और उसके बाद लोकसभा स्पीकर अपनी चेयर पे नहीं बैठ सकते उस पर बहस के दौरान, किसी और को पैनल में से उसमें बैठना पड़ेगा और ये लोकसभा अध्यक्ष के लिए बहुत ही खराब स्थिति होगी। और लोकसभा अध्यक्ष को इस स्थिति में किसने डाला? ये प्रियंका गांधी ने भी बोला, ये पत्र में भी लिखा हुआ है, मोदी जी ने। मोदी जी खुद नहीं आना चाहते थे, खुद डरे हुए थे और मोहरा बनाया गया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को। अब ये बात सब कहने लगे हैं। आपको याद होगा कि पहले दिन ये बात हमने कही थी। इस समय स्थिति इतनी खराब है कि सारे के सारे जितने भी विपक्षी दल हैं वो इस बात को अच्छी तरह जान रहे हैं कि इसमें दोष ओम बिरला का नहीं है, दोष किसी का भी नहीं, किसी मंत्री का, ओम बिरला का, कोई कुछ है ही नहीं। जो कुछ कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी क्यों कर रहे हैं? शब्द खराब है, लेकिन ट्रंप ने बोल दिया
कि मोदी जी आप मेरी दया पर हैं, मैं आपका करियर खराब करना नहीं चाहता, इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। बहुत ही गंभीर स्थिति, दिन भर इसी में चर्चा होती रही कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं जरा इसको बता देता हूं शकील जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने छेड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नरेंद्र मोदी मुझसे प्यार करते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर को खत्म कर सकता हूं। जरा सुना देते हैं, इस बाइट को सुना देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बाइट है, इस बाइट को सुना देते हैं। दिन भर चर्चा का विषय बना रहा और ये पत्रकारों के बीच कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए आखिरी लाइन कि मैं चाहूं तो पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूं, डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। जरा सुनिए। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? Modi, take that any different. I don't want to destroy his... I don't want to destroy his political career, okay? ठीक है। ये जो कहा है इन्होंने, ये जो लास्ट लाइन कि मैं नहीं चाहता हूं कि उनके पॉलिटिकल राजनीतिक करियर को बर्बाद कर दूं, ठीक है? ये जो सेंटेंस है बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ यहां नरेंद्र मोदी साहब, और मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में खुद को बचाने के में जो की जुगत में लगे हुए हैं शकील जी, वो सब कुछ तो दिखाई दे रहा है वहां, संसद के बाहर, संसद के अंदर। यही तो है शकील जी। शकील जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। शकील जी को जरा जी शकील जी प्लीज। हेलो जी, शकील जी हाँ, आ रही है आवाज? जी आ रही हाँ, तो मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, लेकिन कब तक नहीं करूंगा? जब तक मेरा काम करते रहेंगे, मेरी बात मानते रहेंगे। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था दांव पर लग गई है। आज किसान संगठनों ने चेतावनी दी है, 12 फरवरी को हड़ताल, प्रदर्शन। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है और इसके अंदर मोदी जी चाहते हैं कि मोहरा जो है लोकसभा अध्यक्ष बन जाए, सारा का सारा डाइवर्ट मामला उधर हो जाए। अब विपक्ष इस पे किस तरह करेगा, क्या करेगा? विपक्ष ने चर्चा की है, विपक्ष इसके लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष हर पहलू को नाप रहा है, सोच रहा है कि उसे क्या करना है। इस समय पूरी बाजी जो है उसके पास है। तो हम जो बता रहे थे कि वो प्रोसीजर जो है बहुत आसान है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है कि वो एक प्रस्ताव जो है 50 लोगों का साइन करा के देंगे और उसमें बहस शुरू हो जाएगी। और बहस होने का मतलब है वो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ तो जितनी होगी तो होगी, वो सरकार के खिलाफ होगी, सारी की सारी वो मोदी जी के खिलाफ होगी। क्योंकि उसमें सबसे पहली बात यही आएगी कि मोदी जी डरकर संसद में नहीं आए। तो ये जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जहां तक इस बात का सवाल है कि राहुल गांधी को ये कब तक रोकेंगे, मुद्दा यही है सबसे बड़ा, कि ये चाहते हैं कि राहुल गांधी नहीं बोल पाए। लेकिन राहुल गांधी को दो सवाल है शकील जी, माफी चाहूंगा, 2 सवाल। एक सवाल ये कि क्या सचमुच इम्पीचमेंट, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या ये लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। दूसरा, अभी खबर मिल रही है कि किताब, नरवणे साहब की किताब सार्वजनिक करने, पब्लिक में लेके आने के कारण, जिसको पहले से मंजूरी नहीं मिली है, उस कारण राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में। अभी कंफर्म नहीं है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। लेकिन पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव लाने की यहां कोशिश चल रही है? बिल्कुल चल रही है। विपक्ष के पास ये एक ऐसा हथियार है, उसने फेंक दिया, ये कार्ड उसने फेंक दिया। ये कार्ड वो लाएगा नहीं लाएगा, लेकिन उसको चर्चा में ला दिया। लाने में उसको कितनी देर लगेगी? 50 तो खाली कांग्रेस के पास ही है, या किसी के पास अकेले अपने नहीं कराएगा वो। 50 की 100 नहीं, 50 के साइन जरूरी है, 50 के साइन जरूरी है। तो कांग्रेस के पास जो मोशन ऑफ रिमूवल है, मोशन ऑफ रिमूवल देने के लिए 50 लोकसभा सदस्यों के साइन जरूरी हैं, 50। तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, वो सबके कराएगा। तो वो तो विपक्ष के पास एक ऐसा दांव है कि उसने फेंक दिया है और पूरी सरकार में और पूरे लोकसभा सचिवालय में उसने एक हड़कंप मचा दिया है। तो वो कभी भी ला सकता है। वो तो ये देख रहा है कि सरकार जो है राहुल गांधी को कितना मौका देती है, कितना मौका नहीं देती है, और सरकार
के पास इस टाइम कुछ भी नहीं है। सरकार अगर चर्चा से भागेगी तो बजट का क्या होगा, क्या बजट की स्थिति राष्ट्रपति के अभिभाषण जैसी होगी, वो बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी सरकार के लिए। तो इसलिए हर स्थिति में इस वक्त जो है सरकार फंसी हुई है। मोशन ऑफ रिमूवल जो है, इसे अविश्वास प्रस्ताव नहीं कहते हैं, मोशन ऑफ रिमूवल कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव। जी। लोकसभा अध्यक्ष को चूंकि लोकसभा ही चुनती है, लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं, इसलिए लोकसभा के सदस्यों को साधारण बहुमत से होता है, वो कोई उसमें 2/3 वगैरह का चक्कर नहीं है। जितने मेंबर मौजूद होंगे उस दिन उनके साधारण बहुमत से, मतलब 50% से ऊपर होगा, वो पास हो जाएगा। तो पास होगा या नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसके बहाने क्या मैसेज दिया जाएगा पूरे देश को, और वो मैसेज ओम बिरला के खिलाफ तो कम होगा। ओम बिरला तो टारगेट है ही नहीं है, टारगेट असली तो मोदी जी हैं। और मोदी जी इसलिए हैं, आज हम बता रहे थे आपको कि दिन भर यही चर्चा होती रही, इसीलिए राहुल पे आज वो FIR कर रहे हैं। इस FIR से क्या होगा? राहुल किताब ले आए, किताब उन्होंने अभी बोला, आज बोला कि किताब छप गई है। आप ढूंढते रहिए, कहते रहिए, राहुल पे इस तरह के 50 केस बन सकते हैं और बन चुके हैं। राहुल पे हमारे ख्याल में 3 दर्जन केस देश की विभिन्न अदालतों में इस वक्त चल रहे हैं। एक केस और सही, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क इस बात से पड़ने वाला है कि देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और राष्ट्रीय हित हैं, उनको मोदी जी ने किस तरह दांव पर लगा दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल चीन के साथ जुड़ा हुआ है, जो नरवाने की किताब में है कि वो आगे बढ़ रहे थे और हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम फायर करें न करें, ये सबसे गंभीर सवाल है ये। उसके बाद दूसरा सवाल कि भारत का बाजार जो खुल जाएगा उसके बाद क्या होगा। GM फसलें, GM क्रॉप्स, हम आपको बता दें कि इस समय इंडिया में GM क्रॉप्स पे पूरी तरह पाबंदी लगी हुई है। कोई GM फसल पैदा नहीं की जा सकती है। और शायद दर्शकों को मालूम होगा, वैसे तो सब पढ़े लिखे होते हैं आजकल, ये जेनेटिक मॉडिफाइड जो फसल होती है, होता क्या है ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है। पूरा जीन बदल जाता है, DNA बदल जाता है किसी भी बीज में, किसी भी पौधे में, किसी भी जीव में। जी। भारत प्रयोगशाला बनने जा रहा है जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों का, एक बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए कांग्रेस ने मध्यम वर्ग को भी सचेत किया है कि तुम नहीं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी इससे प्रभावित होंगी। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। किसान तो डायरेक्ट प्रभावित होने ही होने वाले हैं, मध्यम वर्ग, हर आबादी प्रभावित होने वाली है। इसलिए ये समस्या जो है बहुत गंभीर है। और इस वक्त मोदी जी के लिए बचाव का एक ही रास्ता है, जो हमने पहले भी बताया था, पहले भी कहा था, उन्हें इस वक्त नेता प्रतिपक्ष से बात करना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष से बात करके उन्हें इस वक्त बजट पास कराने की कोशिश करना चाहिए। और जितने भी मुद्दे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से लेके राष्ट्रीय हित, डील, इन पे संसद को और नेता प्रतिपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए। जी राजीव जी जी। देखिए, अब आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी कहाँ सुझाव मानते किसकी हैं? जब राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेताओं के सुझाव नहीं मान रहे हैं, तो आपके हमारे सुझाव क्यों मानेंगे मोदी जी? ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी का नेटवर्क थोड़ा डाउन दिख रहा है, लेकिन सुनील शुक्ला जी आपके पास, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूँ। प्रशांत जी को दोबारा जोड़िए। सुनील जी, यहाँ 2-3 बहुत गंभीर मुद्दे हैं, जरा उस पर बात आपकी भी होनी चाहिए। ओम बिरला के खिलाफ उनको हटाने का जो प्रस्ताव, इसको कैसे देखा जाए? ओम बिरला साहब को हम लोग लगातार देख रहे हैं, जिस ढंग से ओम बिरला, परसों अंशु नथानी जी हमारी पैनलिस्ट बैठी हुई थी और उन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से, थोड़ा सा अपने अंदाज में उन्होंने बताया कि वो जब ट्रेजरी की तरफ देखते हैं तो कैसे देखते हैं, और जब वो विपक्ष की तरफ देखते हैं तो कैसे देखते हैं। उनका चेहरा कुछ सेकंड में कैसे परिवर्तित हो जाता है, उनका हाव भाव वो वहाँ साफ दिखाई देता है। आप लोग भी देखते होंगे, हम लोग लगातार लाइव करते हैं। लेकिन यहाँ ओम बिरला आखिर क्यों मुद्दे में, और वहाँ संसद, लोकसभा, मतलब ओम बिरला पिछले 10 साल से जब से बैठे हैं उस कुर्सी पर, तब से ओम बिरला को हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जिसमें सवाल खड़े होते हैं। अब क्या बात यहां तक पहुंच गई है कि अविश्वास प्रस्ताव आए? सुनील जी। राजीव जी, अतीत में 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। क्यों आए थे? मावलंकर जी जैसा लोकसभा का अध्यक्ष, उसके खिलाफ 1954 में ही आ गया था। मावलंकर जी को पूरा देश याद करता है। मावलंकर जी के नाम पर एक भवन बना हुआ है, मावलंकर हाल कहलाता है जी।
उनके खिलाफ भी जब अविश्वास उनको हटाने का प्रस्ताव आया तो क्या कहा गया था कि यह हमको सवाल पूछने का मौका नहीं देते। हिंदू महासभा के उस समय सदस्य थे एमवी खरे साहब, उन्होंने क्या बहस के दौरान क्या कहा कि साहब कई मेरे सवाल हैं जिनको पूछने की इजाजत हमको नहीं दी गई। अब सवाल इस बात का है कि आज और मौलंकर साहब के बारे में उस समय भी मतलब ये नहीं था, जवाहरलाल नेहरू जैसा आदमी ये कहा कि साहब इस विषय पर सर्वाधिक मौका विपक्ष को बोलने के लिए दिया जाए, और प्रस्ताव खारिज हो गया था। आज की तो स्थिति है, क्या ये सरकार कह सकती है क्या कि जब हटाने का प्रस्ताव आवे तो विपक्ष को बोलने का मौका दीजिए और भी बीजेपी नेताओं के लिए हम कोई व्हिप नहीं जारी करेंगे? जिस तरीके से पिछले अपने कार्यकाल के दौरान ओम बिरला साहब दिखाई पड़ रहा है, तो आप सोचिए कि आपने यह जो बयान दिया कि कुछ महिला कांग्रेस के कुछ महिला सदस्य से अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, क्या आधार है आपको कहने का? और आज तक उस आधार को बताएंगे नहीं आप। सवाल इस बात का है कि और स्वाभाविक सी बात है कि जो कांग्रेस के सदस्य है या कांग्रेस पार्टी है इस वक्तव्य को लेकर के आपत्ति करेगी, क्योंकि अब तो बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया, आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो गई। अगर आप सदन के भीतर जो देश का सबसे बड़ी पंचायत है और सबसे सुरक्षित स्थान है, वहां अगर प्रधानमंत्री को की सुरक्षा को लेकर अगर इस तरह संदेह व्यक्त किए जाएंगे किसी सदस्य को लेकर, स्वाभाविक सी बात है कि सवाल उठेगा। और ऐसे में जो लोकसभा अध्यक्ष ने बयान दिया तो लोकसभा अध्यक्ष के प्रति तो नाराजगी लोगों के मन में आनी है, एक असंतोष आना ही आना है। और यह जो अविश्वास प्रस्ताव होगा इसमें अगर बहस हो गई, ये इस भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि लगातार आप प्रियंका गांधी का आपने बाइट सुनवाया है कि वो दबाव में थे, उनके ऊपर दबाव डाला गया, गोया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था को ढंग से काम करने की इजाजत नहीं दी गई। यही आरोप लगा था धनखड़ साहब के जमाने में। धनखड़ साहब का इस्तीफा हो गया, क्यों हो गया, क्या हो गया, आज तक किसी का बयान नहीं आया, ये स्थिति बनी हुई है। तो अगर ये और मुझे लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का जो प्रस्ताव है वो आएगा ही आएगा। आपने जो चिट्ठी पढ़ के सुनाई वो चिट्ठी इसी तरफ संकेत करती है। औपचारिक रूप से भी मुझे लगता है कि कांग्रेस से उसको संज्ञा देगी है कि यह लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव है, इसमें बहस होनी चाहिए। 242 से 43 पक्ष के सदस्य हैं, जिसमें अकेले कांग्रेस के 100 सदस्य हैं, तो वह संकट नहीं है कि 50 सदस्यों की जो आवश्यकता है, ये कोई पहले वाले 2019 की लोकसभा नहीं है जिसमें कांग्रेस के सदस्यों की संख्या इतनी भी नहीं थी कि वह विपक्ष के नेता के बन सके। एक मजबूत विपक्ष है इस समय, तो आएगा ही आएगा। और यह बहस निश्चित रूप से फिर एक बड़ा सवाल पैदा करेगा इस सरकार की क्रेडिबिलिटी की। जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव आया, अब फिर तो सवाल यही पैदा होने लगा कि बजट में बहस हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बजट पे बहस लगातार कहती रही है, ये संध्या राय जी आज थी चेयर पर कि आप बजट पे चर्चा कीजिए, कोई सदस्य नहीं खड़ा हुआ बोलने के लिए। राहुल गांधी लगातार कहते रहे कि जो मेरे मुद्दे हैं उन मुद्दों पे मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है कि नहीं, मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल चेयर की स्थिति आप देखिए, आप पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। संध्या राय जी जब ये सवाल उठाते हैं राहुल गांधी तो ट्रेजरी बेंच की तरफ देखने लगती है। यह अधिकार तो जो चेयर में बैठा हुआ उसका है। यह जो कोट कर रहे हैं राहुल गांधी, वह स्पीकर को कोट किया उन्होंने कि स्पीकर ने आश्वासन दिया हुआ है जो लोग उनसे मिलने गए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो नहीं थे उसमें, लेकिन केसी वेणुगोपाल उसमें थे जी। और वो लोग कह रहे हैं कि इस तरह का आश्वासन मिला हुआ। आज पूरा का पूरा दिन इसी बहस में खत्म हो गई। इसी एक माने 10 मिनट के लिए भी चर्चा नहीं हो पाई। और अगर ये बजट भी बिना चर्चा के पास करने की बाध्यता आ जाती है सरकार इसको लंबे समय तो टाल नहीं सकती। एक निश्चित समय अवधि के भीतर आपको बजट पास कराना है। और इसका तरीका ये भी नहीं है कि आप जैसे कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के अभिभाषण के पर जवाब देने के लिए राज्यसभा में चले गए। यह जो बजट है उसको तो आपको लोकसभा में ही पास कराना पड़ेगा। और बिना चर्चा के अगर आपने पास कराया तो क्या स्थिति बनेगी, किस तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव बनेगा। राहुल गांधी जो सवाल लेकर के घूम रहे हैं, जो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वह सबसे बड़ा सवाल है कि जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया तो यह सरकार निर्णय की स्थिति में चली गई। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी निर्णय की स्थिति में चले गए। तो दोनों चीजें हैं, संसदीय परंपरा को प्रभावित करना, उसको कमजोर करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर अनिर्णय की स्थिति का पैदा होना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना,
लोकतांत्रिक संस्थाओं को काम करते न देना, ये तमाम विमर्श इस समय इस सरकार के सामने है। और लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ इस प्रस्ताव का आना ये बहुत बड़ी घटना होगी। या मौलंकर साहब या सरदार स्वर्ण सिंह या बलराम जाखड़ की तरह का मामला नहीं है, यह सीधे सीधे एक चीज बनी हुई है। और जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार ने बचने की कोशिश की, प्रधानमंत्री ने बचने की कोशिश की, वह एक विमर्श पूरे देश भर में विपक्षी दलों में है। और यह इस पर अगर मैंने प्रस्ताव आया और बहस हुई तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार के सामने बहुत ही बेचैन करने वाली स्थिति बन जाएगी। क्या जवाब देंगे आप उसका? और दूसरी चीज की जो अभी आप दो खबरें बता रहे थे कि FIR हो गई, राहुल गांधी एक किताब दिखा रहे हैं जिसका कवर पेज है, उन्होंने उस किताब को किसी को पढ़ने के लिए नहीं दिया। और उसके पहले तो आपको कारवान मैगजीन के ऊपर आपको दर्ज करना पड़ेगा मुकदमा, जिससे बाकायदे उस किताब में छुपी हुई बातों का उल्लेख किया है कि ये चीजें छपी हुई हैं। और वह जो अंश छपे हुए हैं उसको छपे हुए 2 साल हो गए। दूसरी सबसे बड़ी बात सुनील जी, दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर कोई चीज खरीदने, आप कोई किताब ही है, मैं गया मार्केट में खरीदने के लिए, मुझे वो किताब मिल गई, मैं खरीद के ले आया। भाई अगर वो मार्केट में है, ये पब्लिशर जाने ना, ये जो बेच रहा है प्रतिबंधित नहीं किया है राजीव जी, आपने उसको प्रतिबंधित भी नहीं किया है। प्रतिबंधित भी नहीं किया है। अगर आप प्रतिबंधित करते हैं तो प्रतिबंधित चीज रखना एक तरह का गुनाह है, वो तो आपने किया नहीं। बिल्कुल। और 2 साल आपके ऊपर तो आरोप यह बनना चाहिए कि आप एक किताब को प्रकाशित नहीं होने दे रहे हैं, छपी हुई है वो, बिल्कुल, उसका लोकार्पण नहीं होने दे रहे हैं। वो किताब लिखी गई है, लेखक ने कभी नहीं इनकार किया कि हमने लिखी नहीं है। लेखक ने यहां तक कहा है कि वो किताब छप चुकी है, सिर्फ विमोचन का इंतजार है। छप चुकी है, वही मैं कहने जा रहा था कि लेखक कह रहा है कि उन्हें लिखी हुई है, ये भी कह रहा है कि वो छप गई है। लोकार्पण के लिए सरकार जाने और प्रकाशक जाने, जी, पब्लिशर और रोकने के लिए मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस है वो नहीं रोके हुए है, सरकार को इस पर अनुमति देनी है। तो वो सरकार जो बड़ी बड़ी सेना के आड़ में वोट मांगती है, वह सेना के अध्यक्ष के द्वारा लिखी गई किताब पे 2 साल से बैठी हुई। सवाल इस बात का है। और वो सेना का अध्यक्ष आरोप अपनी बात में कर, और केवल वो चीन के लद्दाख का ही मसला नहीं है, उसमें गलवान की घटना का भी उल्लेख है कि गलवान की जब घटना हो रही थी सरकार ने किस तरह का रवैया अख्तियार किया था, गोली चलाने तक की अनुमति नहीं दी गई थी। इस तरह की चर्चा ये बाकायदे एक मैगजीन में छपी हुई है जो पब्लिक डोमेन में है। जिस मैगजीन में वो छपी हुई है उसको भी आज तक आपने बैन नहीं किया। तो अप्रतिबंधित चीज जो छपी हुई है अगर किसी के हाथ में है तो गुनाह कैसे हो गया? सवाल इस बात का। वो सार्वजनिक वितरण में नहीं होगी, बाजार में मिल रही, हमने ले लिया। तो ये तो केवल और केवल अगर और राहुल गांधी के ऊपर आप मुकदमा कर देंगे तो क्या राहुल गांधी करेंगे साहब हमको ये मुकदमा वापस ले लीजिए? उस तरह के प्राणी तो है नहीं। तमाम तरह के आपने मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। व्यक्तिगत रूप से हर मुकदमे में विभिन्न न्यायालयों में उपस्थित भी होते हैं और जहां जाते हैं वहां भी सरकार की शिक्षा लेते रहे। जी, एक ऐसा नेता, आप विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देंगे, पर इससे खराब बात क्या हो सकती है? और मतलब आप डेमोक्रेसी का दावा आप करेंगे, डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है, इस तरह की घोषणा करेंगे और विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा। ये किस तरह की डेमोक्रेसी आप चला रहे हैं? तो ये पूरा का पूरा जो विमर्श बना हुआ है, मेरा अपना मानना है कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ उनको हटाने का प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से अगर आता है तो यह सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और एक ऐसा नैरेटिव बने, जितने भी विमर्श हैं जिसको वह राहुल गांधी को न बोलने दे करके कमजोर करना चाहते हैं, वो चीजें और मजबूत होंगी क्योंकि वह बातें और खुल करके आएंगी। फिर आपको किसी भी तरह से आप उसको रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। प्रकाश जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं इस अविश्वास प्रस्ताव, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी प्रस्ताव आया नहीं है लेकिन ये आ सकता है। इस वक्त जैसे बता रहे थे हमारे दो साथी शकील जी भी और सुनील शुक्ला जी भी कि दोनों बता रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने में कोई दिक्कत अब नहीं है क्योंकि ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वाली संसद है जिसमें 237 सीटें हैं विपक्ष के पास। 237 सीट्स ऑलरेडी सांसद हैं संसद में और कुछ आ सकते हैं। अगर परिस्थितियां उनके पक्ष में बनी तो हो सकता है कि उधर से टूट के कुछ इधर आ सकते हैं। लेकिन यहां
संसद की गरिमा, प्रतिष्ठा, इसकी बात आती है और इन सब के बीच एक चेहरा सामने आता है, वो है राहुल गांधी। सत्ता पक्ष का कहना है, प्रकाश जी, सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ बयान दिया है मीडिया के सामने आके कि एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी संसद नहीं चलने दे रहे हैं, सीधे नाम लेके कि ये संसद नहीं चल रही है तो राहुल गांधी के कारण। लेकिन राहुल गांधी का दोष क्या है, जरा ये बता दीजिए। क्या सच्चाई को सामने लाना, किसी किताब में लिखी हुई बातों को सामने लाना, सरकार की कमजोरियों को उजागर करना, या हम ही लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं हम भी सरकार की कई सारी कमजोरियों को उजागर करते हैं, क्या ये दोष है, क्या ये गुनाह है? सवाल उठता है। और इन सब के बीच यह अविश्वास प्रस्ताव, प्रकाश जी। भारत के इतिहास में ऐसे बेशर्मी वाले मौके बहुत कम आए होंगे जब संसद में प्रधानमंत्री जी नहीं आते लोकसभा में और स्पीकर की ढाल बन जाते, स्पीकर उनकी ढाल बनने का काम करते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री संसद में ही सुरक्षित ना हो और स्पीकर बोले कि अगर प्रधानमंत्री जी आते लोकसभा में तो कुछ हंगामा हो सकता था, महिला सांसद जो है वो कुछ कर सकती थी। तो क्या महिला सांसद हिंसक हो सकती थी, क्या अनुचित दिख सकती थी, क्या कोई कर सकता था? और जो चिट्ठी आज लिखी है महिला सांसदों ने, कांग्रेस के महिला सांसदों ने, उस पर भी तो विचार करें माननीय स्पीकर महोदय, और प्रधानमंत्री जी जवाब दें। एक बात यह कि तय हम स्पीकर का मुद्दा नहीं है, मुद्दा प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री आके बोल दें कि हम ये जो चीजें हुई है, नरवणे जी की किताब में जो बातें लिखी वो सही है, गलत है, ये बोल दें कि गलत है। सही है तो बता दें कि सही है, और हमने अधिकार दिए सेनाध्यक्ष को भी आपको जो उचित लगे करो, हमने तो अच्छा काम किया, ऐसा ही बोल दें। पर वो बोलने को तैयार नहीं है। आमतौर पर होता है कि भारतीय पतियों को जब पति से पूछा जाता है, पत्नियां पूछती पति से क्या करूं, तो वो बोलते हैं कि जो तुम्हें उचित लगे कर लो, पत्नी को बोला जाता है। तो इस तरह की भूमिका हमारे देश में रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री निभा रहे हैं, कोई जिम्मेदारी लेने की बात नहीं कर रहे हैं। और तोहमत किस पर लग रही? विपक्ष के नेता पर। बहाना एक किताब का है जो किताब प्रतिबंधित नहीं हुई है, जो किताब 2 साल से विचाराधीन है, उसको रक्षा मंत्रालय ने अनुमति नहीं दी। तो ये सारी चीजें जिस पर चर्चा होनी चाहिए नहीं हो रही है। और अगर ये स्पीकर को हटाने की कोशिश होती है या प्रस्ताव रखा जाता है, तो प्रस्ताव रखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बेइज्जती है किसी भी स्पीकर के सामने। अगर ये प्रस्ताव भर रख दिया जाए, 50 सांसद चाहिए न्यूनतम, तो लगभग 237 हैं विपक्ष में, तो 50 सांसद तो कोई भी दस्तखत करेंगे ही। इंडिया अलायंस के दूसरे लोग भी करेंगे, कांग्रेस के लोग भी। अगर जितने भी लोग प्रस्ताव आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। दूसरी बात जो अभी आपने कुछ देर पहले अपने ट्रंप का बयान, तो मैं चकित हूं कि एक दूसरे देश का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कहता है कि वो उनका करियर डिस्ट्रॉय कर सकता है। अरे भाई ट्रंप साहब, आप हो कौन? आप अपने अमेरिका की बातें करो, भारत के बारे में क्यों बात करते हो? तो प्रधानमंत्री को इसके बारे में बोलना चाहिए, वो नहीं बोल रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष को बोलना चाहिए, वो नहीं बोल रहे बीजेपी के अध्यक्ष। और ट्रंप जो मन में आए, अगर हम बगड़म शतरम बोले जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, मुझे तो बड़ी लज्जा आती है ऐसे बयान सुनकर। हमारे प्रधानमंत्री को भी आती होगी, तो वे कोई ना कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, कोई सीधा बयान क्यों नहीं देते कि ट्रंप आपको जो करना है करिए, हमें जो करना है हम करेंगे। फिर एक जो बात जीएम बीजों की बात आई है, जीएम बीज जो आएंगे ये इसकी सबसे बुरी बात यह है कि इसमें जो फल आएगा या फसल आएगा उसमें बीज नहीं उगेंगे। यानी जीएम के बीज से आप कोई फल लगाइए, आम लगा दीजिए या जाम का पेड़ ले लिया या कोई फसल ले ली, तो उसमें बीज नहीं आएंगे। जीएम कपास के प्रयोग मध्य प्रदेश में हुए हैं और उस कपास के बड़ा बुरा परिणाम है कि उस कपास में बिनोला होता ही नहीं, केवल रेशे हैं। अभी अगर उन्होंने वो बीज हमें 10,000 रुपए किलो दिया, तो जरूरी नहीं कि आगे भी 10,000 रुपए किलो ही देंगे। हो सकता है आगे जाकर कीमत 1 लाख रुपए किलो कर दें, क्योंकि हम अपने बीजों को डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे तब तक। तो ये इतनी बड़े बड़े खतरे हैं देश पे।
देश की सुरक्षा खतरे में है, देश का किसान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। स्पीकर महोदय अपनी अपनी भूमिका ठीक से निभा नहीं रहे हैं, विपक्षियों पर लांछन लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में सुरक्षित नहीं है, इस तरह की बातें स्पीकर कह रहे हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में आते नहीं, ये मतलब अगर देश का प्रधानमंत्री लोकसभा में सुरक्षित नहीं है तो इस देश के आम आदमी की क्या हैसियत होगी? वो एक आम आदमी कहां जाएगा? उसकी सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे? इसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। देश जातिवाद के गर्त में धकेल दिया गया है। पहले आपने धर्म के नाम पे अफीम चटाई, अब जाति के नाम पे अफीम चटा रहे हैं। देश में लोग, हर जगह लोग बेसब्रे हो रहे हैं, तनाव में है और उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। सैनिकों के साथ आपने अग्निवीर योजना लाके सैनिकों के मनोबल को गिराया। नरवणे जी इस बारे में कह चुके कि सेना की कोई स्पष्ट राय नहीं ली गई, सेना से मशविरा नहीं किया गया। तो आखिर इस देश में अब सुरक्षित कौन बचा? सैनिक सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, और ट्रंप जैसा आदमी जो हमारे देश का कुछ भी नहीं है। होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन वो हमारे बारे में कुछ भी बोलते हैं और हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर ये स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव आता है तो ये प्रस्ताव स्पीकर को हटाने का नहीं होगा, ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री के विरुद्ध होगा। प्रस्ताव अगर आता है और पास होता है तो बात की बात है, लेकिन प्रस्ताव आना ही प्रधानमंत्री के घोर अपमान की बात होगी। राजीव जी। जी, ये प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के खिलाफ होगा, कहना है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी का। आना चाहता हूं जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव? ओम बिरला काफी नामी इंसान हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा माइक जब भी बंद करने की बारी आती है तो उनका ही नाम आता है। कहीं भी आपके माइक से भी आवाज नहीं आती है तो धीरे से कोई बोलता है कि ओम बिरला कहीं पीछे खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसे हालात हो गए हैं कि आप कहीं ना कहीं सेंसरशिप की तरफ जा रहे हैं। पारदर्शिता, जिसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं इंग्लिश में, उसकी बेहद यहां कमी दिखाई दे रही है। और ऐसे में राहुल गांधी पर सीधे आरोप लगाना कि राहुल गांधी ही सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, उसको कैसे आप देखते हैं? इस बीच एक खबर आ रही है जो दिल्ली पुलिस ने क्या क्या किया है, उस किताब को लेकर जरा पढ़ के सुना देता हूं। दिल्ली पुलिस ने विभिन्न ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समाचार मंचों पर मिली जानकारी का संज्ञान लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक की प्री प्रिंट कॉपी प्रसारित की जा रही है। यह भी बताया गया है कि इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सत्यापन करने पर पता चला कि इसी शीर्षक वाली पुस्तक की एक टाइप सेट PDF कॉपी, जिसे कथित तौर पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है, कुछ वेबसाइटों पर उपलब्ध है और कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर पुस्तक का अंतिम कवर बिक्री के लिए उपलब्ध होने के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस कथित लीक उल्लंघन की गहन जांच के लिए विशेष प्रकोष्ठ में मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। अब मामला दर्ज किया गया है, अब उस मामले में राहुल गांधी का नाम भी है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ही लेके आए संसद में उस किताब को। तो ये है, ये आधिकारिक तौर पे दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जो बयान है वो आपको हम बता रहे हैं। यानी अभी मामला इस किताब का, नरवणे साहब की किताब जो है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये किताब अभी बहुत गुल खिलाने वाली है। लेकिन इन सब के बीच 2 बातें यहां, एक ओम बिरला साहब की बात और दूसरी राहुल गांधी की बात। ओम बिरला साहब संसद चलाना चाहते हैं, राहुल गांधी संसद चलने नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी और उनके साथी ओम बिरला को हटाना चाहते हैं। अब ये बात यानी अविश्वास प्रस्ताव, और इन सब के बीच राहुल गांधी पर 2 आरोप। पहली यही किताब वाला आरोप, और दूसरी बात कि वो चलने ही नहीं दे रहे हैं संसद। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, एक तो दिल्ली पुलिस जो है जांच ये भी कर सकती है कि रक्षा मंत्रालय की किन अधिकारियों ने इस किताब को प्रकाशित होने की अनुमति नहीं दी, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए, चूंकि अनुमति काफी लंबे समय से अटकी हुई है। तो इस FIR को जो आई है उसको इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है ऐसी दिशा में हो रही हो जांच कि भाई ये जांच जो है अधिकारियों ने किसने जो है इसकी अनुमति नहीं दी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि इतनी महत्वपूर्ण किताब है, राहुल गांधी के पास पहुंच गई और उन्होंने अभी तक इसकी अनुमति क्यों नहीं दी। तो यह भी हो सकता है राजीव जी। तो इसको हम लोग तो अच्छे सोच वाले लोग हैं, तो अच्छे तरीके से सोचते हैं कि इसीलिए दायर की गई होगी ये किताब जो है वो उसकी अनुमति रक्षा मंत्रालय से मिल जाए।
हो सकता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी दिल्ली पुलिस बुला ले कि भाई इसकी अनुमति क्यों नहीं मिल पाई, तो ये हो सकता है। लेकिन राजीव जी, अब राहुल गांधी पे यह आरोप लगाना कि वो संसद नहीं चलने दे रहे हैं और ओम बिरला साहब का खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव की बातें आना, ये कहना है कि राहुल गांधी के साथी जो हैं वो ओम बिरला को हटाना चाहते हैं, तो भाई ये तो हटाना चाहते हैं तो ये उनका अधिकार है, जिन्होंने चुना था वो हटाना चाहते हैं। और ये तो राजीव जी बड़ी मांग होती रही है कि ये अधिकार तो जो है वो आम मतदाता को भी मिले कि अगर हमारा सांसद जो है और हमारा विधायक यानी हमारा जनप्रतिनिधि जो है अगर वो नाकारा साबित है तो उसको वापस बुलाया जाए, राइट टू बैक टू कॉल, इसको वापस बुलाया जाए तो ये मिले। तो सांसदों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो बुला सकते हैं वापस, तो अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अब आप अगर ऐसी पाबंदी लगा दें कि ये अधिकार का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो फिर तानाशाही आ ही गई है। लेकिन राजीव जी, हर तानाशाह किताब से डरा करता है, तो ये दिखाई पड़ता है कि क्या आप तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं या आप तानाशाह हो चुके हैं। क्योंकि अगर इस तरीके के भी राजीव जी आए कि साहब आप पीएम केयर्स फंड पर आप नहीं पूछ सकते सवाल, संसद को ये डायरेक्ट करने वाला राजीव जी कौन होता है, कोई विभाग या कोई मंत्रालय, कि क्या सवाल संसद के अंदर नहीं पूछे जा सकते। इस पर अगर इस तरीके की कोई गाइडलाइन आई है, इस पर तो ओम बिरला साहब अगर वास्तव में लोकसभा के अध्यक्ष हैं और स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं तो उनको सख्त एक्शन लेना चाहिए, बुलाना चाहिए। जिसने भी ये जारी किया है उसको बुला के उसको सजा देनी चाहिए कि संसद का अपमान करने वाले आप कौन होते हैं। बहरहाल राजीव जी, ये ओम बिरला साहब के ऊपर है। लेकिन हाँ, मुझको लगता है कि ओम बिरला साहब अगर कहा जाता है कि उनकी रीढ़ जो थी वो झुकी हुई थी, जो चले गए अपने जगदीप धनखड़ साहब, लेकिन मुझे लगता है कि ओम बिरला साहब से ज्यादा थोड़ा रीढ़ वाले आदमी थे, इस्तीफा देकर चले गए। तो ओम बिरला साहब भी अगर इस्तीफा देकर चले जाए तो रीढ़ साबित दिखाई पड़ती रहेगी। और अगर ये प्रस्ताव आ गया, रिमूवल का प्रस्ताव आ गया, तो पास हो या ना हो राजीव जी वो एक अलग का मसला है, और पास हो भी सकता है, ऐसा क्या कि क्यों नहीं हो सकता है। अगर पास हो गया तो फिर क्या होगा, तो ठीक है, मोदी जी के मोहरे हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अच्छे तरीके से मोदी जी का वो काम भी करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उसके लिए वो बधाई के पात्र है कि मोदी जी जो कहते हैं उसके लिए करते हैं। लेकिन अगर उनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो जैसा कि कहा प्रकाश जी ने कि ये प्रस्ताव सीधा सीधा इसका मतलब नरेंद्र मोदी के खिलाफ होगा। तो अब राजीव जी, अगर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इस तरीके का प्रस्ताव आता है और इस पर अगर चर्चा भी हो जाती है, ओम बिरला साहब को अगर एक सेकंड के लिए भी उस कुर्सी से नीचे उतरना पड़ता है उस प्रस्ताव की वजह से, तब क्या स्थिति पैदा होगी, ये ओम बिरला साहब को सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि मोदी जी की खैरख्वाही में या उनको बचाने के लिए इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप अपने पद की जो मर्यादा है उसका भी आप पूरी तरीके से आप जो है वो उसको संभाल ना सके, उसे बचा ना सकें। आप पद पर रहते हुए मोदी जी का काम कीजिए, किसी ने नहीं रोका, खूब काम कीजिए, आप करते रहते हैं, लेकिन उस हद तक जाकर कीजिए कि जहां आपके सम्मान को चोट ना पहुंचे और आपकी पद की गरिमा को चोट ना पहुंचे। अगर विपक्ष लगातार राजीव जी संसद के अंदर इस तरह की बात कर रहा है, बाहर आकर इस तरह की बातें की जा रही हैं और आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो राजीव जी है कि आपने महिला सांसदों का अपमान किया है। इसके लिए ओम बिरला साहब को माफी मांगनी चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ओम बिरला साहब को ये जानकारी कहाँ से मिली, और रंजीत रंजन है जो कांग्रेस की सांसद राज्यसभा की, वो कह रही है कि भाई इनके पास कहाँ से सूचना आई कि महिला सांसद हमला करने वाली हैं। वो सूचना इन्होंने किसी एजेंसी क्यों नहीं दी, पुलवामा में अटैक कहाँ से हो रहा है, ये जानकारी हमारी एजेंसियों को नहीं मिली, लेकिन ओम बिरला साहब को ये जानकारी मिल गई कि आके 10-11 सांसद जो है महिला सांसद वो प्रधानमंत्री पर हमला करने वाली हैं। तो इतना गंभीर आरोप लगाकर अगर ओम बिरला साहब ये चाहें कि बचकर निकल जाएंगे, मुझे लगता है राजीव जी की वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। 240 के मोदी जी हालांकि ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन इसके बावजूद 240 पर अटके हुए हैं, और इतना आगे बढ़कर बिरला साहब को खेलना नहीं चाहिए था कि आप विपक्ष के नेता के सम्मान के साथ भी आप जो खिलवाड़ करें और महिला सांसदों के ऊपर आप इतना ज्यादा गंभीर आरोप लगा दें बिना किसी सबूत के। आप जब सांसदों से कहते हैं कि यहाँ कुछ भी बोला जाएगा उसको ऑथेंटिकेट कीजिए, तो ओम बिरला साहब भी इसको ऑथेंटिकेट करें कि उनके पास ये सूचना कहाँ से आई, क्या थी उनके पास सूचना के सोर्स क्या थे। क्या मोदी जी ने उनको ये बताया, क्या संसदीय कार्य मंत्री ने उनको बताया, किसने बताया, वो सोर्स क्या है। संसद के अंदर कोई भी बात बिना ऑथेंटिकेट किए नहीं हो सकती। ये खुद रूलिंग दी हुई ओम बिरला साहब की ही है। तो जब ओम बिरला साहब की ये रूलिंग दी हुई है कि बिना ऑथेंटिकेट कोई बात नहीं हो सकती है, तो ओम बिरला साहब बिना ऑथेंटिकेट किए हुए कोई बात कह कैसे सकते हैं राजीव?
जी जी बिल्कुल, सवाल वाजिब है, लेकिन वो ओम बिरला हैं, वो आसंदी पर विराजमान हैं और वो जैसे चाहे वो करें, वो कर रहे हैं, ये दिख रहा है। लेकिन फिर भी हर इंसान, चाहे वो कहीं भी बैठा क्यों ना हो, भारत के संविधान से वो बंधा हुआ है, संवैधानिक दायित्वों से बंधा हुआ है, और इसीलिए अगर वो उससे ज़्यादा कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होता है, या चाहे उसके खिलाफ इम्पीचमेंट लेके आते हैं, और ये सारी चीज़ें हमने इतिहास के पन्नों में देखा भी है, जिसका जिक्र अभी सुनील शुक्ला जी ने भी किया था। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच राहुल गांधी के कारण यह संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है? एक बड़ा सवाल यहां पे फिर से मैं उसको रेज कर रहा हूं। दूसरा सवाल कि जिस ढंग से इन तीन चीज़ों को यहां लाया गया है, खासकर पीएम केयर फंड को लेकर, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कोष को लेकर, राष्ट्रीय रक्षा कोष को लेकर, और पीएम राष्ट्रीय राहत कोष, इन तीनों से जुड़े हुए सवाल लोकसभा में नहीं पूछे जाएंगे, और मोदी के कार्यालय ने, पीएम मोदी के कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी सांसद न पूछे। इसको कैसे देखा जाए शकील जी, कि ये सवाल आप पूछ ही नहीं सकते हैं कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा है, चाहे पीएम राष्ट्रीय राहत कोष में कितना पैसा है और क्या हुआ, और आप ये भी नहीं पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा कोष क्या कर रहा है, वहाँ पर कितना धन है, अर्जित है। आने वाले समय में ऐसी कोई आफत वाली स्थिति आ जाए तो देश की जनता को पता ही नहीं, जो पैसा दे रही है राहत कोष में, उसी को पता नहीं कि हमारे पास कितना, हमारी सरकार के पास रिजर्व कोटे में कितना है कि हम कल को हमारे ऊपर आफत आए तो हमारे ऊपर खर्च कर पाए। और इसको अगर आप इस ढंग से निर्देशित करते हैं लोकसभा सचिवालय को, तो एक बात ये तो है कि चलिए निर्देशित कर दिया, लेकिन यहां पर आपसे जो समझना चाह रहा हूं, क्या लोकसभा अध्यक्ष के पास इतना पावर नहीं है कि वो कहे कि आपका निर्देश जो है वो अनुपालन के योग्य नहीं है? कह सकता है कि नहीं कह सकता? क्यों नहीं कह सकता? पावर तो बहुत है, इच्छा शक्ति हो, मोदी जी से टकराने की हिम्मत हो, कह सकता है। असंवैधानिक बात है जो कही गई है। देखिए राजीव जी, अगर ये बीजेपी के टाइम में सवाल आता कि नेता प्रतिपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, तो वो लोग गर्व से भर जाते कि हां, हम में इतनी ताकत है कि हम सदन को रोक सकते हैं। राहुल ऐसे दंभ की बात कभी करते नहीं है। और ये जो आरोप लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की वजह से सदन नहीं चल पा रहा, ये राहुल ने खुद बता दिया कि मेरे वजह से नहीं, उनके जवाब देने से बचने की वजह से नहीं चल पा रहा है। वो आए, मेरे सवालों का जवाब दे दें, मेरी सुन लें, अपनी कह दें, सदन चलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। राहुल पे आरोप लगाने से क्या होगा? राहुल ने आज भी, आपने भी दिखा रहे हैं, ये बोलने की 2 बार कोशिश करी राहुल ने, आज 11 बजे फिर 2 बजे, वो बड़े आराम से राहुल बात कर रहे हैं। राहुल ने तो कोई हंगामा नहीं किया। राहुल ये सवाल कह रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष से हमारे लोग गए थे मिलने के लिए, और लोकसभा अध्यक्ष ने उनसे कहा था कि हाँ, हम सुन लेते हैं, शकील जी सुन लेते हैं दोबारा। राहुल गांधी उठ के खड़े हुए और साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे लोग गए थे। ये नहीं कह रहे कि मैं गया था, और बाद में उधर कहा भी कि केसी वेणुगोपाल गए थे। यही है शकील जी, ये बता रहे हैं कि मैं नहीं गया था, ये क्लियर कर रहे हैं वो जी। ये राहुल गांधी ने क्लियर किया कि मैं नहीं गया था, मेरे लोग गए थे, क्लियर किया उन्होंने। जी सुन लेते हैं, जरा सुनते हैं, सुनाइए जरा राहुल गांधी को। बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने, मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? तो साफ साफ यहाँ पे है कि आप अपने वर्ड से पीछे हट रहे हैं। आपने जो वादा किया उससे आप पीछे हट रहे हैं। आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मुझे आप अलाउ करने जा रही हैं, क्या मुझे परमिशन देने जा रही हैं आप या नहीं? आसंदी से पूछ रहे हैं राहुल गांधी। शकील जी, बिना ऊंची आवाज किए जी, बिना ऊंची आवाज किए, शांत और संयत, इससे
ज्यादा और आपको नेता प्रतिपक्ष से क्या चाहिए? वही हम कह रहे हैं कि बीजेपी के टाइम में होता, लोकसभा में होता, सुषमा स्वराज थी, सुषमा स्वराज किस तरह बोल रही होती? वो तो सिर मुड़ा लेती थी अपना, भूमि शयन करने लगती थी, चना चबेना खाने लगती थी। ये राहुल गांधी हैं, शांति से बात कर रहे हैं, तो ये कहां रोक रहे हैं संसद चलने से, लोक सदन चलने से? ये नहीं रोक रहे। खुद प्रधानमंत्री ही आने से बच रहे हैं, और न केवल आने से बच रहे हैं, न आने का कारण उन्होंने ओम बिरला जी से, लोकसभा अध्यक्ष से एक ऐसा कहलवा दिया कि उससे एक बड़ा गलत मैसेज चला गया कि भारत का प्रधानमंत्री जो है वो सदन में आने से डरता है। महिला सांसदों की वजह से, अपनी सांसदों की वजह से। नेता सदन है वो। अरे नेता सदन हुआ, चिट्ठी लिखी है महिला सांसदों ने, आप आज भी उन सांसदों को बुला के बात कर सकते थे, लोकसभा स्पीकर बात कर सकते थे। नेता सदन खुद नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री, वो बात कर सकते थे कि भाई क्या बात है, आइए बैठिए बात करते हैं हम लोग, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं। देखिए ये जो आपने बताया पुलिस की जांच का, बहुत ही खतरनाक चीज है ये लोग देश को कहां ले जा रहे हैं। ये तो कल आर्मी चीफ के खिलाफ भी जांच कर सकते हैं, नरवणे खिलाफ साहब को भी इस जांच में शामिल कर सकते हैं। वो आप देख रहे हैं ना अमेरिका ने क्या कहा है, स्पष्ट रूप से डील में कहा है, हमारे अधिकारी भारत पर नजर रखेंगे। भारत पे नजर रखी जा रही है। अब नजर किस पे रखी जाती है? कितनी खराब स्थिति है कि अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर नजर रखेगा, पहली बात। और दूसरी बात, उसने कहा नजर रखेंगे वो तो ठीक है, मैं आपका करियर डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, खत्म कर सकता हूं आपको, लेकिन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी आप मेरे मर्जी के अनुकूल काम कर रहे हैं, अमेरिका को फायदा पहुंचाने के काम कर रहे हैं। 500 अरब डॉलर का आयात करना पड़ेगा हमको राजीव जी। हमने हिसाब लगाने की कोशिश करी, 500 अरब डॉलर कितने होते हैं? 45 लाख करोड़ रुपए। भारतीयों को वो सामान खरीदना पड़ेगा। कैसे खरीदेगा ये मध्यम वर्ग? इसीलिए कांग्रेस ने अच्छा लाया है कि मध्यम वर्ग, तुम कैसे खरीदोगे उस सामान? तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा, तुम्हें जबरदस्ती खरीदवाया जाएगा तुमसे। अभी जितना भी हमारे यहां आयात होता है या विदेशों से माल आता है, उसको 2.5 गुना हमें करना पड़ेगा। और क्या? जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो चीजें हमें खरीदना पड़ेंगी। और ये जो आज ये बात हो रही है, किसान संगठनों ने भी कहा, कांग्रेस ने भी कहा, दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जो पीयूष गोयल जी हैं हमारे वाणिज्य मंत्री, ये गलत बयानी करते चले जा रहे हैं। किसान संगठनों ने आज उनसे इस्तीफा भी मांग लिया है। पीयूष गोयल इस्तीफा दो। 0 टैरिफ देगा अमेरिका, 1 पैसा भी जो सामान आएगा उस पर कोई शुल्क, कोई टैक्स नहीं देगा। पहले कितना लगता था? 30 से लेके 150%। कई चीजों पे भारत उससे 150% वसूल करता था, कुछ पे 30 करता था, किसी पे 50 करता था जी। सब फ्री में आएगा। और हमारा जो हम जहां से ले जाते थे 3% देते थे मात्र, वो 18 कर दिया। और उसमें अफवाही हो रही है, हार्टफुल पहन रहे हैं वो। 3 से 18 कर दिया, 3 से 50 किया, 50 से 25 किया, 18 किया। ये खुशी की बात है। तो स्थिति जो है लगातार बिगड़ती चली जा रही है, घरेलू मोर्चे पे भी और अमेरिका के मोर्चे पे तो बहुत ही खराब हालत है। चीन और अमेरिका, इन दोनों के मुकाबले हमें खड़ा होना चाहिए था, और इन दोनों ने इतना दबाव बना दिया है हमारे ऊपर। चीन के सामान से मार भरा पड़ा है, बाजार भरा पड़ा हुआ है चीन के सामान से। अब ऐसा ही अमेरिका के सामान से पूरा बाजार भर जाएगा। भारतीय किसान कहां जाएगा? भारत के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो कहां जाएंगे? और सबसे बड़ा खतरा ये जीएम क्रॉप्स का है। इसको अभी कांग्रेस समझाएगी, विपक्ष समझाएगा, बाकी जो लोग हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के स्वर बहुत दबे हुए हैं, क्योंकि सबको बहुत मुश्किल है। ये अभी जैसे एफआईआर करी, ये कल किसी के खिलाफ भी कर देंगे। ये कृषि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जीएम क्रॉप्स को हमारे यहां इसीलिए रोक के रखा गया है। बैगन के ऊपर काफी शोध हुए थे, लेकिन इसीलिए रोक के रखा गया है कि हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम खुद अपना उत्पादन जो है नेचुरल तरीके से इतना करने में समर्थ हैं कि हमें ये कृत्रिम तरीका नहीं चाहिए, जेनेटिक मॉडिफाइड नहीं चाहिए जी।
जेनेटिक मॉडिफाइड करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम होंगे उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। क्या हम उसको रोक पाएंगे? रोकने की हमारे पास सामर्थ्य है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए जो है ये अमेरिका का ये जो प्रेशर है, प्रधानमंत्री को निश्चित ही रूप से बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। संसद चल रही है, संसद में वो आए और बोले वो। और नेता प्रतिपक्ष को राहुल ने यही तो कहा ना कि तय हो गया था कि मैं थोड़ी सी अपनी बात करूंगा। राहुल अपनी थोड़ी सी बात करते, उसका बजट पर चर्चा शुरू हो जाती। लेकिन सरकार खुद बजट पर चर्चा करना नहीं चाह रही है, क्योंकि बजट पर चर्चा होगी, डील पे चर्चा होगी तो मोदी जी एक्सपोज होंगे। ये मामला पीयूष गोयल का थोड़ी है, विदेश मंत्री जयशंकर का थोड़ी है, रक्षा सलाहकार डोभाल जी का थोड़ी है। मामला अब सिर्फ मोदी जी का है कि मोदी जी ने इस हद तक ट्रंप के सामने सरेंडर क्यों कर दिया। एपस्टीन फाइल का नाम आ गया, सामने ले दिया, राहुल ने ले दिया, कांग्रेस ने ऑफिशियली ले दिया। मामला बहुत गंभीर है ये, और इस गंभीर मामले में देश के जो हित हैं, देश की जो सुरक्षा है, दोनों दांव पे लगी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देश की सुरक्षा की बात, और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। लेकिन इन सब के बीच संसद का गतिरोध आखिर खत्म कैसे होगा? अगर देखा जाए, क्या ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा? सुनील शुक्ला जी, 13 तारीख तक है ये जो पार्ट है, पहला पार्ट 13 फरवरी तक है, और आज ऑलरेडी 9 फरवरी, मतलब इसी सप्ताह समाप्त होना है। उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। फिर मार्च में जब होली के बीतने के बाद फिर इसकी शुरुआत होगी, जो अप्रैल तक चलना है। और इस बीच चुनाव की घोषणा भी होगी। 5 फरवरी 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। 5 राज्यों में जो चुनाव, उसमें भी असम में बवाल मचा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं असम में हिमंता बिस्वा शर्मा क्या क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत ही अजीबोगरीब की हरकतें उनकी हो रही हैं। और उस पर एक हमारी राय मैंने किया है, एक वीडियो है, उसको हमने लिंक किया हुआ है, इसको ज़रूर देखिएगा आप तमाम साथी। कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन किया हुआ है हमारी राय। असम में जो चल रहा है, इसको देखने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी है इस वीडियो को देखना। इसको ज़रूर देखिएगा। अभी ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ही अपलोड हुआ है उस वीडियो को, उसका लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, आप कैसे देखते हैं, क्या ये गतिरोध इसी ढंग से बरकरार रहेगा? आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आइए, चाहे आप कुछ और कीजिए, लेकिन राहुल गांधी संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। और इधर अब दिल्ली पुलिस उनकी जो स्पेशल सेल है वो एक्टिव है। आगे क्या दिखाई दे? ये तो आरोप ही बेईमानी है, ये तो आरोप ही बेईमानी है कि राहुल गांधी नहीं संसद चलने दे रहे हैं। संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, यह स्थापित नियम है। राहुल गांधी के ऊपर कहां से जिम्मेदारी आ गई कि वो संसद को चलावे? विपक्ष के नेता हैं, उनका काम सवाल पूछना है, उनका काम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को संसद में या सदन में उठाना है। आप उसका जवाब दे दीजिए। लेकिन अगर आप विपक्ष के नेता की बात को सुनेंगे ही नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अपनी बात को लेकर के दबाव डालेंगे, अपनी बात को लगातार वो कहते रहेंगे। आप उनकी बात सुन लीजिए, उस पर अपना जो मांग कर रहे हैं उसकी कार्रवाई कीजिए, संसद चलाइए। संसद में गतिरोध क्यों है? क्या कोई अनर्गल बात कर रहे हैं राहुल गांधी? कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो संसद में नहीं की जानी चाहिए? वह जनता से जुड़े हुए सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक मुद्दा उठाया जो सार्वजनिक डोमेन में, पब्लिक डोमेन में है। ऐसा नहीं है कि किसी ने उसकी चर्चा नहीं की और आप उसे बात करने के लिए नहीं तैयार है। सरकार इस विषय पर, मेरा अपना मानना यह है कि भले यह पूरा का पूरा सत्र हंगामे के भेंट चढ़ जाए, नरवणे साहब की किताब के आधार पर जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, उसकी चर्चा संसद में नहीं करने देगी। क्यों? कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक ऑरा बनाया गया है, वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। जो सरकार, जो पार्टी, जो नेता लाल लाल आंख दिखाने की बात करती थी चीन के साथ, वह इस तरह से उसकी स्थिति हो गई कि निर्णय नहीं ले पा रही है। उसके साथ ये स्थिति आ जाए कि सैनिकों पर हमला हो जाए और आप कहें कि आप गोली नहीं चलाएंगे। आप उस सरकार से बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकारों से बात तो होती रही है ना। आप याद कीजिए कि जब विंग कमांडर अभिनंदन जी पकड़ गए थे पाकिस्तान में, तो बात करके तो उनको छुड़ाया गया था कि लड़ाई करके छुड़ाया गया। यहां जहाज के लोग उनको उठा लाए। बातचीत तो हुई दोनों सरकारों के बीच में। तो ऐसा तो है नहीं कि आप बातचीत नहीं करते हैं।
आप चीन के जब टैंक आ रहे थे और देश के सामने तमाम तरह के सवाल थे, तो उन टैंकों को रोकने के लिए सरकार भी तो बात कर सकती थी। या तो युद्ध का निर्णय लेती, गोली चलाओ देखा जाएगा, लड़ाई लड़ते हैं, या आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए शिखर स्तर पर बात करते कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे सीमा के साथ। गलवान में भी आप यही काम कर सकते थे। गलवान में भी आपने से लोगों को बलिदान करा दिया, शहीद करा दिया, और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो यह जो आरोप है यह बहुत गंभीर आरोप, और इस बात का जवाब अभी तक सरकार केवल इस आड़ में बचने की कोशिश कर रही है कि ये किताब छपी नहीं, एक किताब प्रकाशित नहीं। सवाल इसके बात का है किताब प्रकाशित हो या ना हो, लिखी गई है कि नहीं गई है। क्या थल सेना अध्यक्ष ने कोई टिप्पणी की? मेरा अपना मानना यह है कि सेना के ऊपर सवाल नहीं पैदा कर पाएंगे। अगर सेना के ऊपर सवाल पैदा करना इतना आसान होता तो अब तक कर चुके होते। इतना लंबा बहस नहीं चलता। ये आप याद कीजिए कि लेफ्टिनेंट जनरल वीके सिंह की किताब है, उसका ट्रायल आज तक नहीं शुरू कर पाए, क्योंकि यही सरकार है जो सेना के नाम पर वोट मांगती है, सेना के पराक्रम का उल्लेख करती है, सेना और सरकार की आलोचना को सेना की आलोचना के रूप में निरूपित करती है जी। जब आप थल सेना अध्यक्ष से, निवर्तमान थल सेना अध्यक्ष से सवाल पूछने लगेंगे तो यह पूरा का पूरा जो नैरेटिव है आपका ध्वस्त हो जाएगा। कहीं मतलब आप यह स्थिति आपके सामने नहीं बनेगी। आज ये हालात यह है कि बात तो आप बड़ी बड़ी करते रहे। आपने कहा कि देश नहीं बिकने देंगे, समय इसका अभिनंदन किया, और आप हालत ये होगी कि आपने एक ऐसा सहमति बना लिया अमेरिका के साथ कि देश के पास कुछ बचेगा ही नहीं। जी। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इससे आप बच जाए। खेती किसानी के ऊपर इस देश की सरकारों ने कभी स्वीकार नहीं किया। आप याद कीजिए कि कांग्रेस की सरकार थी, अमेरिका से कमलनाथ उससे मंत्री होते थे, जब डंकन प्रस्ताव आया था उन्होंने कहा कि मैंने कृषि क्षेत्र हम नहीं खोलेंगे। सरकार ने कभी नहीं खोला। वो डेयरी का क्षेत्र जो था वो कभी उसको नहीं खोला, कहा कि नहीं मानेंगे। उससे भी दबाव सरकार के ऊपर होते थे, लेकिन हमारी कृषि के ऊपर हमारी प्राथमिकता थी। और एक भारत एक ऐसा देश है जिसमें कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक एम्प्लॉयमेंट है और एक उल्लेखनीय योगदान है जीडीपी में। और अगर आप उसको बर्बाद कर देंगे, सस्ती चीजें वहां से आएंगी। और आप सोचिए कि जिन चीजों पर अमेरिका में टैरिफ लगता था 2.5%, 2%, 3%, उसको 18% ले रहा है, और उसको भी आप उपलब्धि बता रहे हैं। और जिन पे भारत 100% टैरिफ लगाता था, 150% टैरिफ लगाता था, उसको आपने जीरो कर दिया, और उसको भी आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। और ऐसे क्षेत्र खोल रहे हैं आप जो पूरी तरह से आत्मघाती है। आप इतना साहस नहीं कर पा रहे हैं कि उस सहमति पत्र को रेसे रसे एक डिटेल लोगों के बीच में बता सके कि इसमें ये चीजें हैं, ये हमारे नफा में है, इन कारणों से हमने यह समझौता किया। उसकी बात करने की स्थिति में आप नहीं है। तो आर्थिक मोर्चे पे आप फेल हैं। आर्थिक मोर्चे पर देश के हितों की रक्षा करने में आप विफल हैं। देश की सीमा के ऊपर जब खतरा हुआ तब निर्णय की स्थिति में आ गए। आपने पूरी तरह से युद्ध कभी थल सेना अध्यक्ष, युद्ध का निर्णय थल सेना अध्यक्ष लेता है? ये कभी किसी लोकतांत्रिक देश में हुआ? कम से कम हमारे देश में ये तो एक राजनीतिक निर्णय है, क्योंकि युद्ध के परिणाम जो होंगे वो व्यापक होंगे, वो केवल सेना तक सीमित थोड़ा रहेगा। उसका असर अर्थव्यवस्था पड़ेगा, उसका असर विदेश नीति के ऊपर पड़ेगी, उसका असर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपके देश के डिप्लोमेसी से प्रभावित होगी। ढेर सारे कारण होते हैं, इसलिए उसका निर्णय तो राजनीतिक नेतृत्व को करना चाहिए। वो आप निर्णय ले पाते हैं। तो यह मेरा अपना मानना यह है कि चाहे वो नरवणे साहब की किताब के ऊपर बहस का सवाल हो, आरोप हो राहुल गांधी का वो, या अमेरिका के डील को लेकर के कौन बोल रहा है डील के ऊपर, हर आदमी भाग रहा है। ये दोनों ऐसे विषय हैं जो इस सरकार का जो एक माहौल बना हुआ है उसको बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। जिस बिना पर कि नहीं एक ऐसा नेता, एक ऐसी पार्टी जो केवल राष्ट्रहित के बारे में सोचती है, ये राष्ट्रहित है। आप खड़े नहीं होंगे बोलने के लिए, विपक्ष के नेता के सवालों का जवाब नहीं देंगे। आप विपक्ष का नेता बोलना चाहेगा तो आप उसका माइक ऑफ कर देंगे। और इतनी राहुल गांधी भी तो जितनी बातें कहना चाहते हो आज कह जाते, उस दिन भी कह जाते, लेकिन उन्होंने बाकायदे स्पीकर से या आसन से ये पूछा कि मुझे अपनी बात कहनी है, आप मुझे अनुमति देते हैं कि नहीं देते। ऐसे माहौल में, इन स्थितियों में मुझे नहीं लगता है कि सरकार उन विषयों पर बात करने देगी, क्योंकि यह सरकार के पूरे ऑरा को प्रभावित करता है। ये इन विषयों का जवाब सरकार के पास नहीं है।
अगर इन विषयों का जवाब सरकार के पास होता तो वह किताब के प्रकाशित होने का मुद्दा नहीं उठाती, वह उस प्रकाशन के मुद्दे को लेकर के छिपना चाहती है, और इस मुद्दे को लेकर के वो छिप पाएगी मुझे नहीं लगता। और विपक्ष इसको छोड़ देगा। अब तो विपक्ष के नेता कहने लगे हैं कि स्पीकर के मुद्दे पर इंडिया दल समूह एक साथ है। मैं भी कहीं पढ़ रहा था समाजवादी पार्टी एक नेता का बयान कि जो स्पीकर को लेकर के पार्टी विपक्ष में एक राय बनी है, उसमें पूरा का पूरा इंडिया दल समूह एक साथ है, और सब लोग बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डिम्पल यादव का बयान है ये डिम्पल यादव का बयान है। नहीं जी, तो ये सामान्य बयान थोड़े है। अगर और ये स्थिति बन गई, स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष का प्रत्येक दल, मतलब आप कल्याण बनर्जी का बयान याद कर लीजिए, जो उन्होंने कहा था कि अगर आप विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दे रहे हैं तो कल आप हमको नहीं बोलने देंगे, हम किसके पास जाएंगे जी। इस तरह का सुरक्षा का भाव या लोकसभा के अध्यक्ष से जो संरक्षण मिलना चाहिए उसकी कमी का एहसास सभी पक्षी दल कर रहे हैं। ऐसे में मेरा अपना मानना है कि विपक्ष इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह सरकार को पूरी तरह से घेर लिया उसने, और दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिसका सरकार कैसे काउंटर कर पाएगी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया। और विपक्ष आक्रामक है, एक स्वर से बोल रहा है। FIR करा देने से और इस करने से पूरा का विषय कमजोर हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता जी, बल्कि यह विषय और लोगों के बीच में प्रभावी तरीके से जाएगा। तो भले सदन में बहस हो या ना हो, सरकार इस विषय पर चर्चा नहीं होने देगी, मेरा अपना मानना है जी बिल्कुल जी। सरकार इस विषय पर चर्चा नहीं होने देगी तो फिर क्या बजट सत्र ऐसे ही चला जाएगा? जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा है अभिभाषण के बाद, उस चर्चा को हमने देखा। प्रकाश जी, क्या ऐसे ही होगा? इतिहास के पन्नों को खंगालिए, क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं पहले? राजीव जी, ये एक ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए, जब हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसको करने वाली हमारी सरकार नहीं है, बल्कि विदेशी शक्तियां हैं, और उनके इशारे पे हमारे देश की सरकार काम कर रही है। सरकार के पास जो फंड है उसके बारे में सरकार बताना नहीं चाहती, कितना फंड अलग अलग पदों में है, उस फंड का क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या विपक्ष के नेताओं की जासूसी के लिए खर्च हो रहा है, ये बताने को तैयार नहीं है। किसान भारत में क्या होगा, हार्ले डेविडसन आएगी, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए की मोटर बाइक आएगी, और हमारी मोटर बाइक से कम टैक्स उस पर लगेगा, जबकि हमारी मोटर बाइक पे जो टैक्स उससे कम टैक्स हम विदेशी कंपनी पर लगाएंगे, ताकि उसका माल हमारे देश में जी। प्रकाश जी की आवाज चली गई। प्रकाश जी, आपकी आवाज, प्रकाश जी की आवाज अचानक चली गई है। प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं जी। क्या मेरी अब देखिएगा जी, आ रही है। तो इस देश में जो कुछ हो रहा है बड़ा अजीब सा है। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार अपने दायित्व से, अपनी जिम्मेदारी से इस तरह मुकर रही है। किसानों के प्रति दायित्व निभाने को तैयार नहीं है, संसद के प्रति दायित्व निभाने को तैयार नहीं है, जवानों के प्रति दायित्व निभाने को तैयार नहीं है। देश का जो पैसा अलग अलग मदों में, दान में या जन सहयोग में आया, उसके बारे में बताने को तैयार नहीं है। तो सरकार चाहती क्या है? आज ही एक खबर आई है कि सरकार ने जो वादे संसद में किए हैं उनमें से केवल 16% वादे ही पूरे किए। यानी संसद में भी सरकार जो कहती है वो होता है, आधी बातें भी उसकी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 1/6 बातें ही पूरी होती है। तो आखिर एक चुनी हुई सरकार है। हमारे अपने प्रधानमंत्री जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, कुछ पत्रकार हैं जो कहते हैं कि भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो शक्तियां कहां गई, वो शक्ति किसमें आ गई? क्या वो शक्ति ट्रंप रूपी तोते में आ गई है या किसी और में आ गई है, ये पता नहीं। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां यहां वहां बिखरी पड़ी है, और वे विपक्ष के सामने आने को तैयार नहीं है, लोकसभा में आने को तैयार नहीं है, महिला सांसदों से डर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि इतिहास में कभी भी हुई नहीं होगी और भविष्य में होगी, इसकी भी कोई आशंका मुझे नजर नहीं आती। तो हम एक बड़े ऐसे दौर में गुजर रहे हैं जहां जवाबदेही के नाम पर कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। पूरी सरकार इवेंट बेस्ड चल रही है
हर चीज का इवेंट है। क्योटो बना रहे हैं किसी शहर को टोक्यो बना रहे हैं, और बन कुछ भी नहीं रहा है। जिन गांव को गोद लिए थे वो गोद में ही है। 12 साल से वो गांव बेचारे गोद में ही है, घुटने घुटने के नहीं चल पा रहे हैं। राजीव जी, ये बहुत आखिरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन गांवों को आपने गोद में लिया वो गोद में ही है, घुटने पर भी नहीं आ पाई है। तो ये अपने आप में एक दुखद पहलू है। और नरेंद्र मोदी ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, उस पर कितना खरा उतर पाए हैं वो आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच संसद, दोनों सदन संसद में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों में जो कार्यवाही होती है वो देश हित में होती है। और देश में वहाँ से ही बहुत सारे ऐसे नियम कायदे बनाए जाते हैं जिससे ये देश चलता है। संविधान जो है उसकी रक्षा भी यहीं से होती है। लेकिन क्या यहाँ सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को आखिर बोलने नहीं दिया जा रहा है और बोलने के लिए वो खड़े होते हैं, अदब के साथ अपनी बात रखते हैं। लेकिन बाहर केंद्रीय जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू कहते हैं कि एलओपी संसद को चलाना नहीं चाहते हैं। क्या यही चलता रहेगा? अमलेंदु जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे, क्या यही चलता रहेगा कि तुम तो बात करने नहीं दे रहे हो और तुम चलाने नहीं दे रहे हो? यही परिस्थितियां बनी रहेंगी? तुम के इस पे ये पूरा का पूरा जो है संसद का बजट सत्र निकल जाएगा, ये हम माने? राजीव जी, मणिक्कम टैगोर है कांग्रेस के सांसद, उन्होंने 2-3 दिन पहले आरोप लगाया था कि संसद को सबसे ज्यादा बाधित करने वाले संसदीय कार्य मंत्री अपने किरण रिजिजू साहब हैं, और यही जो है वो संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, सबसे ज्यादा यही बाधित करते हैं। और ये देखने में आया है राजीव जी की नारेबाजी भी करते हुए रिजिजू साहब नजर आते हैं। संसदीय कार्य मंत्री का काम विपक्ष के साथ बात करके संसद को चलवाना है कि संसद चले। सरकार की बात भी अगर कुछ है तो सरकार की बात तभी आएगी जब संसद चलेगी, और अगर संसद चलेगी ही नहीं तो मोदी जी अपनी 56 इंच की छाती और एक अकेले सब पर भारी कहाँ दिखाएंगे? तो अगर मोदी जी की 56 इंच की छाती की नाप सही से करनी है तो वो संसद चले तभी हो पाएगी। मुझे लगता है कि किरण रिजिजू साहब जो काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं मोदी जी से, जब से उनको कानून मंत्री के पद से हटाया गया है और संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है, तो शायद इसलिए वो संसद को नहीं चलने देना चाहते हैं, इसलिए राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो राहुल गांधी के ऊपर अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी संसद नहीं चलने देना चाहते, तो क्यों नहीं चलने देना चाहते ये भी तो बताइए ना, कि राहुल गांधी संसद क्यों नहीं चलने देना चाहते? कोई तो कारण होगा अगर राहुल गांधी संसद नहीं चलने देना चाहते हैं। वो कारण जो है वो रिजिजू साहब बता नहीं सकते, चूंकि अगर वो रिजिजू साहब कारण बता देंगे तब फिर ये आएगा जो उचित समझो वो करो। तो जो उचित समझो वो करो, तो कि रिजिजू साहब को आ रहा है उचित समझो तो वही कर रहे हैं, मोदी जी को समझ में आता है वो करते हैं, और जो बिरला साहब को आ रहा है तो वो जो उचित समझो वो कर रहे हैं। राजीव जी, तो ये सब कुछ तो जो उचित समझो वो करो पे चल रही है देश। जो उचित समझो वो करो, और इस आधार पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं संसद में कुछ भी उचित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। संसद में कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए लेकिन वो नहीं हो रही है। ये दुखदाई पहलू है इस देश की जनता के हिसाब से अगर देखा जाए तो। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक, क्या ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आएगा, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी के खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस किताब का जो मामला है वो कहां तक आगे बढ़ता है, इन सब पर निगाहें टिकी रहेंगी। हमारे तमाम साथी आप सब जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शकील जी, आपका शुक्रिया।